Good evening students, we will start where I left at the previous video. Because of the technical difficulties I left fertilization half. The process of fertilization is the fusion of male gamete sperm and the female gamete ovum is called as fertilization. Zygote is formed after fertilization. So in the previous videos I have said you what is fertilization. Fertilization is a process by which different plants and animals make their zygote. This is not only happening in human, this is happening in all other sexually reproducing animals. Sexually reproducing animals में zygote का form होना is very important. Zygote का form होता है. Zygote is formed when two gametes meet, one male, one female. Zygote is a unicellular structure. Only one single cell is present in zygote. When zygote multiplies by the process of cell division to make make new cells, and number of cells increases, it is known as embryo. Now fertilization is two types of, that is internal fertilization and external fertilization. Internal fertilization occurs when the process of fertilization takes place inside the organisms. It's mainly taking place inside the female organism. कोई भी एनिमल में फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, मेल या मेल में नहीं होता है, बहुत कम होता है. When fertilization takes place inside the animal body, it is called as internal fertilization. Internal fertilization occurs in animals including human, cow, dogs and hen. As I said, most of the animals, higher animals, fertilization takes place inside the organism itself, inside the female organism. हम लोग humans में होता है, cows में होता है, dogs में होता है, hens में भी होता है. Now we'll see external fertilization. The type of fertilization, the fuse of male and female gamete takes place outside the body of the animal body is called as external fertilization. External fertilization कब होता है? जब दोनों किसी के बॉडी में नहीं होता, बॉडी के बाहर fertilization होता है. You must be thinking how this happens. It's very common in aquatics such as fish and starfish. क्या होता है? Male organism आता है, female organism आ गया. In the water, inside the water, male क्या करता है? अपना sperm छोड़ देता है. Female क्या करती है? अपना eggs छोड़ देती है. Inside the water, by chance, some male and some female gamete fuse and form zygote. And those zygotes give rise to new organisms inside the water itself. They don't get inside the female body again, never. वो पानी में ही बड़े होते हैं, उसके अंदर ही बड़े होंगे. इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो लोग पानी में ऐसा खुला छोड़ दे रहे हैं, तो कोई भी मछली आके उसको खा सकती है, कि और कोई एक्वाटिक एनिमल्स आके उसको खा सकते हैं. तो पानी वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बहुत ही डिफिकल्टी है. इसमें चांस होता है, और चांस ये है कि मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट से मिलेगा. यदि नहीं मिला, zygote फॉर्म नहीं हुआ, तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा. तो इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत ही रिस्की है. सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन द लोअर एनिमल्स. छोटे एनिमल्स में ये देखा जाता है, बड़े एनिमल्स में नहीं होता. जैसे फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, इसमें ही होता है external fertilization. Say during spring or rainy season, the frog and toads move to the pond and river. When the male and female come together in the water, the female lays egg and the male deposits sperm over them. Each sperm swims randomly in the water with the help of long tail, and the sperm then comes to contact with the egg. See, the sperm comes in contact with the egg inside the water. जो किसी का बॉडी में नहीं हो रहा था. लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल अपना स्पर्म फीमेल के बॉडी में डायरेक्टली अंदर डालता है. अंदर डालने के बाद वो लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करता है. ट्रैवल करने के बाद वो लोग फीमेल गैमेट से मिलके फर्टिलाइजेशन करके zygote बनाते हैं. लेकिन यहाँ पानी के अंदर ये सब हो जा रहा है, पर इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज है और रिस्की भी है.
Development of embryo takes place in the female reproductive system through the following steps. See, development of embryo in internal fertilizing organisms takes place inside the female reproductive tract. Okay, I will show you the picture and you will have a better understanding. This is the female reproductive tract. You know this is the female reproductive tract. What happens? Sperm को यहाँ छोड़ देते हैं. Okay, sperm यहाँ पहुंच जाता है. यहाँ से वो ऊपर जाता है. ऊपर जाने के बाद यहाँ पहुंचता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है. यहाँ से फीमेल गैमेट आता है, यहाँ से मेल गैमेट आता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है. ये सब एक क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है. सो इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. बट फ्रॉग्स, फिश और स्टारफिश में क्या होता है? वो पानी में होता है. सो इट इज वेरी अनसेफ. ओके, now you will say how the sperm is going from here to here. This is all a liquid field. इसमें पानी सा भरा होता है. पानी नहीं, लेकिन पानी लाइक एक सब्सटेंस भरा होता है. लिक्विड फील्ड होता है इसके अंदर. ठीक है. डेवलपमेंट. ओके, every month a single eggs come out from an ovary, reaches the fallopian tube to the female reproductive system. During the copulation, the sperm reaches the fallopian tube where the sperm fertilizes the egg and the result is formation of zygote. As I told you now, the sperm travels all the way up inside the reproductive system of a female and there they meet with female gamete and make the zygote. zygote एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जो बाद में डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनाता है. एम्ब्रियो बाद में बेबी बनाता है. ठीक है. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells begin to form groups that develop into different tissues and organs. The developing structure is termed as embryo. Okay? The developing structure is termed as embryo. Zygote give rise to the embryo. Embryo is a multicellular structure that give further rise to the baby or the fetus. Okay? The embryo gets implanted on the walls of the uterus for the further gradual development of the body parts as hand, legs and eyes, etc. The stage of the embryo in which the body parts can be identified, it's called as fetus. तो क्या हो गया? देखो, ये जाइगोट, ये एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो में आपको कहीं हाथ पैर का पता चल रहा है? नहीं. लेकिन जब ये और डिवाइड करेगा और बहुत सारे सेल्स बनेंगे तो क्या होता है? कुछ सेल्स ऐसे हाथ बनाएंगे, कुछ पैर बनाएंगे, कुछ मुंह, कोई नाक, कोई कान बनाएगा. तो ये जब ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा तब जाके हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फीटस. द पीरियड टेकन बाय द बेबी टू डेवलप फ्रॉम द डे zygote was formed to come out to the world is known as the gestation period. ह्यूमंस में gestation period 9 months का होता है. आप लोग सुने होंगे कि 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा. तो दिस 9 month in scientific language it is known as gestation period. Okay, now onwards you will use the words gestation periods. For humans it is 9 months. Longest gestation period is seen in elephants. 2 साल तक वो अपने यूट्रस में बच्चा रखते हैं. वो बड़ा होता है, उसके बाद ही वो लोग बच्चा देते हैं. 2 साल तक. You see, the period taken by the baby to develop from the day zygote was formed is called as gestation period. In human, gestation period is around 9 months. Okay, the process of formation of another offspring is zygote is known as development. So all the process that is I told you, the gestation, the ovulation, the zygote formation, the fertilization, सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? Development. Okay. After the embryo divides into a multicellular structure which will be differentiating, having legs and hands, mouth, everything that you look in a baby will be having in a fetus. Then only we will say the embryo is developed into a fetus. Okay? In the case of hen, देखो hen भी internal fertilization करता है, लेकिन उसमें एक चीज है कि जब fertilization हो जाता है, zygote formation हो जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, वो उसके बाद उसको अपने बॉडी में नहीं रखता है. वो क्या करता है? उसको अपने ओविडक्ट से, ओविडक्ट का मतलब फैलोपियन ट्यूब. सी, फैलोपियन ट्यूब.
हैंड्स में भी ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है फेलोपियन ट्यूब, इसको जो अभी दिखाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, उसके अंदर से जाने वक्त क्या होता है, जो एम्ब्रियो उसके अंदर से जा रहा रहता है, उसके अंदर एक सेल डेवलप हो जाता है। वो फेलोपियन ट्यूब में ऐसे सिक्रीशंस होते हैं बहुत सारे जो उसको कवर कर देते हैं। क्या एक हार्ड सेल में जो व्हाइट सेल आप लोग अंडा का देखते हैं, वो एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब में जाते वक्त प्रोड्यूस होता है। ओके, दिस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एम्ब्रियो इज पासिंग थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। Okay, the process of forming of this cell around the embryo takes about 4 to 5 days. Okay, after that the hen lays the मुर्गी अंडा दे देती है। Okay, उसके बाद क्या करती है, मुर्गी उसका ऊपर बैठी रहती है, उसको 3 हफ्ता तक उसको ऊपर बैठना पड़ेगा, तब जाके उसका अंदर से बच्चा निकलेगा। और बच्चा कैसे निकलता है, वो अपने आप उस अंडे का खोल को तोड़ के निकल जाता है। आप कुछ करना नहीं पड़ता कि मुर्गी को कुछ करना नहीं पड़ता। Okay, this is how the hen reproduction work. Now we'll see what is viviparous and oviparous. This is a very important concept you have to remember throughout your life. Viviparous, we are viviparous animals. हम लोग अपने बच्चों को डायरेक्ट बच्चा देते हैं और उसको अंडे के अंदर डाल के नहीं निकालते, डायरेक्ट बच्चा दे रहे हैं। ओके, now oviparous, ओ अंडा जैसा दिखता है, तो आपको याद रखने में इजी होगा कि ओविपैरस, ओविपैरस में ओ है और ओ अंडा जैसा दिखता है। तो ये एनिमल्स, ओविपैरस एनिमल्स क्या करते हैं, आधा काम बॉडी के अंदर, उसका अंडा में बंद कर देते हैं, अंडा को बाहर निकालते हैं, उसको फिर उसके ऊपर बैठ के उसको गर्मी देते हैं, गर्मी देने के बाद वो बच्चों में डेवलप होते हैं। ओके, दैट इज नोन एज ओविपैरस। ओविपैरस एनिमल्स आर hen, frog, एक्सेट्रा। एंड viviparous एनिमल्स आर ह्यूमन, डॉग्स, काउ, जो कि डायरेक्टली अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। ओके, ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब एक आर्टिफिशियल टेक्निक है, साइंटिस्ट ने ये टेक्निक बनाया है। क्या होता है, कुछ मैरिड कपल्स में जो फीमेल होते हैं वो लोग ठीक से, कि मेल होते हैं वो लोग ठीक से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डिफेक्ट्स होता है, कहीं कहीं कुछ खराब हो जाता है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसलिए वो लोग बेबी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यूज करते हैं क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक साइंटिफिक मेथड से डॉक्टर्स यूज करते हैं, ओके, टू हेल्प यू टू हैव ए बेबी। Some women are unable to give birth because of the oviduct are blocked. In result of sperms can't reach the eggs or fertilization. Doctors collect freshly released eggs and sperms and keep them together. As you know, जो कि external fertilization में जैसे हो रहा था कि eggs है और sperm है, एक साथ रखोगे तो फ्यूज होगा ही होगा। तो सिमिलरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, फीमेल से मेल गैमेट निकाल लेते हैं, जो फीमेल से उनका ओवम ले लेते हैं, ठीक है, मेल से स्पर्म ले लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक डिश में कि टेस्ट ट्यूब में उसको डाल के रख देते हैं, तो वो फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद वो जाइगोट फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करने के बाद वो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है उसको फिर एम्ब्रियो को लेके मम्मी के पेट में डाल देते हैं, मम्मी की यूट्रस में डाल देते हैं। ओके, this is how the in vitro fertilization works. Okay, the fertilization occurs, the zygote is allowed to develop a few weeks and then it is transferred into mother's uterus. The whole development takes place in the uterus and the baby is born like any other baby. यहाँ जो बेबी बॉर्न होता है वो और कोई बेबी की, मतलब जो भी अलग बेबीज बॉर्न होते हैं सेम ही होता है, उसका डेवलपमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। बस उसका जो फर्टिलाइजेशन किया गया था उसको टेस्ट ट्यूब में किया गया था, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। नाउ वी विल सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपको बोला है जैसे कि 2 मेल गैमेट मिले, जाइगोट फॉर्म हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद एग कि वो फीटस में होगा कि वो एग हो जाएगा, उसके बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होकर फिर वो रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज द डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट इज अ सर्कुलर प्रोसेस, आपको बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। When your young ones or the animals resemble the adults in direct development, जब डेवलपमेंट पूरा डायरेक्ट हो, ओके, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब आपका, मतलब जो भी बच्चा पैदा होता है
वो बड़ा होने के बाद जो भी उसको पैदा किया है उसकी तरह दिखे, पूरा नहीं, उसकी तरह, सिमिलर टू दोज पेरेंट्स इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट में हैं, ठीक है। द डायरेक्ट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन हैन, मैन और मंकी। मंकी का बच्चा जब बड़ा होता है वो मंकी की तरह ही दिखता है ऑलमोस्ट। हैन का बच्चा जब छोटा होता है उसके बाद बड़ा हो जाता है वो पूरा हैन की तरह ही दिखता है और किसी की तरह नहीं दिखेगा। तो इट्स नोन एज द डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, एज यू कैन सी एडल्ट गिव एग, एग को 3 हफ्ता तक वो उसके ऊपर बैठ के गर्मी दी, गर्मी देने के बाद वो चिक में होता है, चिक को और 3 महीना आप लोग रख दो तो वो एक एडल्ट हैन में ग्रो कर जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस, यू नो, दिस इज सर्कुलर प्रोसेस। Okay, this is the life cycle of the hen. Similarly, we have the life cycle of our. Okay, now we'll see what is indirect development. When the young ones of animals do not resemble the adult, then indirect development takes place. Example: frog, butterfly, silk, moth. You know, sometimes क्या होता है, जो भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, okay, उनके जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो एग्स हो कि डायरेक्ट पैदा हो, वो कभी कभी क्या होता है कि एडल्ट्स की तरह दिखते नहीं है, मतलब जो भी उनको पैदा किया है उनकी तरह दिखते नहीं है, क्योंकि वो लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। उनमें क्या होता है, देखो, फ्रॉग एग्स दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, हो गया। लेकिन जब एग्स हैच करता है, एग से जब बेबी फ्रॉग निकलता है, उसको बेबी फ्रॉग नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टैडपोल। उसमें क्या होता है, देखो, ये और ये सेम नहीं है, ये एडल्ट फ्रॉग है और ये बेबी फ्रॉग है, जो टैडपोल बोलते हैं जिसको, वो सेम नहीं है। इसमें देखो एक पूंछ है, इसमें ना पैर है ना हाथ है। इट इज सिमिलर टू जस्ट लाइक ए फिश, ये फिश की तरह ज्यादा दिखता है। बट व्हेन दे ग्रो, ये जब बड़ा होता है, बड़ा होगा, देखो इसमें एक टाइप का पीछे वाला पैर डेवलप होना शुरू हो गया, और ये जो फिर वो धीरे धीरे जो और बड़ा होता है वो पूरा इस टाइप का चेंज हो जाता है। सो यू सी देयर इज अ साइकिल जो है इसमें जो साइकिल है, देख रहे हो, ये बिल्कुल भी इसकी तरह नहीं दिख रहा है, पर धीरे धीरे जब ये बड़ा होगा, इसमें ये पोर्शन चला जाएगा, हाथ आएगा, पैर आएगा, आंख आएगा, वैसे पूरा इसकी तरह दिखेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट नहीं है। लेकिन हैंड में देखो, ये और ये पूरा मतलब ऑलमोस्ट सेम है। देखो, इसमें जो पंख है, इसमें भी पंख है, इसमें पैर है, इसमें भी पैर है, इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो, सिमिलरली है, पूरा मतलब सेम ही दिखता है। ओके, बट इन दीज एनिमल्स, दोज आर इनडायरेक्ट डेवलपिंग एनिमल्स, ये चीज नहीं होता है। सिमिलरली फ्रॉग्स में होता है, बटरफ्लाई और सिल्क मॉथ, दिस आर द एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एनिमल्स में होता है। ओके, now we'll learn an important concept, that is metamorphosis. Okay, this is known as metamorphosis. See, indirect development में कभी कभी क्या होता है, कुछ organs को हम लोग development में खो देते हैं। See, here this is a tail. Okay, this is the organ. Tail is an organ. When you are developing, when the frog is developing, when the tadpole is developing into an adult frog में कोई टेल नहीं है, पर इसमें है, तो ये ऑर्गन डेवलप होते होते खो जाता है। ओके, मतलब ये अपने आप मर जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। Okay, in the case of indirect development, transformation of young ones into adults through drastic changes is called as metamorphosis. Okay, इसमें drastic change आता है, मतलब drastic का मतलब बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। सिमिलरली जो tadpole है वो छोटा मछली की तरह दिख रहा है, वो छोटा मछली जब बड़ा हो जाता है तो वो फ्रॉग की तरह दिखने लगता है। बहुत डिफरेंस हो जाता है ना, जो दिखने में वो क्या है और ये क्या है, डिफरेंस हो जाता है। Similarly, the best example to understand metamorphosis is life cycle of a butterfly. Okay, life cycle of a butterfly. How this butterfly actually do things. See, in butterfly life cycle क्या होता है, पहले लार्वा होता है। बटरफ्लाई जो आप लोग देख रहे होते हैं वो डायरेक्ट बटरफ्लाई में नहीं होता है,
बटरफ्लाई पहले एक कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर, ओके। वो जो ग्रीन कलर का जो ऐसे 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 होता है वो एक कैटरपिलर होता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो लीव्स खाता है, कैटरपिलर ईट लीव्स, और उसके बाद लीव्स खाने के बाद वो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं कुकून, कुकून बोलते हैं इसको। कुकून के अंदर कैटरपिलर में इतना ज्यादा चेंजेस आता है कि कुकून जब सूख के गिर जाता है वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। फिर बटरफ्लाई में जब रिप्रोडक्शन होता है वो लोग एग्स देते हैं, एग्स हैच करके कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर के बाद कुकून, कुकून एक्चुअली कुकून एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कैटरपिलर ही है। 1-2 महीने के बाद वो क्या होता है, बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। So this is a very good example to understand metamorphosis. Metamorphosis is a type of indirect development in which the young ones and the adults are very different from each other. बहुत different है। ये उसका बच्चा है कैटरपिलर, बटरफ्लाई का बच्चा कौन है, कैटरपिलर। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है कि नहीं, इसका चलने में और ये उड़ने में बहुत डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। Okay, now we will learn the last part of this chapter, that is the asexual reproduction method, the budding. The reproduction method is seen in those multicellular animals which are highly simple in structure. क्या होता है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि asexual reproduction is a thing that unicellular animals do. Single celled, एक ही सेल होता है उनके अंदर, तभी उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। वो लोग अपने आप को, अपने बच्चों को प्रोड्यूस करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। ए स्मॉल बर्ड ऑफ बल्जेस develops on the body after developing the bird. It gets detached from the parent's body to begin as a new individual. See, this is my hand, okay? Now, listen to me. This is my hand. But how budding works? ये hand है, ये सोच लो एक हाइड्रा है। I'll teach you here only, okay? हाइड्रा में क्या होता है, ये जब हाइड्रा में बडिंग होता है, बडिंग होने के बाद वो नया हाइड्रा बनाता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर कि कहीं पर भी यहाँ बर्ड जैसे शुरू होता है, बर्ड मतलब ऐसे छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है, वो बनना शुरू होता है, ठीक है। बनना शुरू हो गया, देखो यहाँ बनना शुरू हो गया। बनना शुरू होने के बाद ये धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद ये पूरा ही इसकी तरह दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ना। फिर क्या होता है, जो भी जहां से वो लगा होता है मेन पेरेंट से, वहां से कट जाता है, कट जाता है और ये बाकी अपना लाइफ खुद जीता है। ये पूरा सिमिलर होता है इसकी तरह, ओके। बर्डिंग में यही होता है। देखो ईस्ट है, ईस्ट इसको बोलते हैं ईस्ट, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये पहले ऐसा था, ठीक है, ये पहला सेल है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें बर्डिंग हुआ, ऐसे इसको बर्ड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर ये डिवाइड कर गया, ये जो पेरेंट बर्ड ये जो था ये बर्डिंग किया। फिर देखो 2 सेल डिवाइड हो गए, 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। There is formation of 2 cells by the process called budding. This is how unicellular organisms increase their number. एक सेल था, अभी 2 सेल हो गया, नंबर बढ़ गया ना। This is unicellular organism. Since new individuals develop from the bird, the type of asexual reproduction is called as budding. Example: hydra, sponges, yeast, other bacteria also do this budding. Then we have the binary fission. बाइनरी फिजन भी सिमिलर टू द बर्डिंग है, बस इसमें कोई बर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। एग्जांपल एमोइबा, एमोइबा में ये होता है, ओके। इन दिस मेथड ए ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। द फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स, देन फॉर्म्स 2 डॉटर सेल्स, okay. Then the cytoplasm divides in the mother cell, dividing into 2 daughter cells. This lead to the formation of 2 daughter cells, each having nucleus and its own organelles. Then they develop into a fully formed adult. Example: Paramecium,
लेस्निया एंड एमोइबा. ओके, दिस इज हाउ द एमोइबा डेवलप. सी ये पहला एक एमोइबा था. ओके, एक न्यूक्लियस है, एक ही सेल है इसका अंदर, मतलब एक ही सेल है और एक ही न्यूक्लियस है. एमोइबा यूनिसेल्युलर है. ठीक है, वो क्या किया, अपने न्यूक्लियस को पहले डिवाइड कर दिया. देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद वो क्या किया, अपने साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर दिया. ये जो ब्लू कलर है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसे डिवाइड कर दिया. नाउ यू सी देयर आर 2 डॉटर सेल्स. दिस इज हाउ बाइनरी फ्यूजन हैपेंस. If you are asked, just you draw this diagram and you will be clear to those who are asking you. जिसको भी जो भी आपको ये पूछ रहा है, आपको ये डायग्राम आप उसको बना दीजिए और समझा दीजिए कि पहले क्या होता है. न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद पूरा सेल डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल फॉर्म करता है. तो इसीलिए पेरेंट्स न्यूक्लियस डिवाइडेड, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. दिस इज हाउ बाइनरी फ्यूजन वर्क्स. ओके, now the last part, that is known as the cloning. ठीक है, cloning is a very easy thing to understand. Okay, cloning is a process of production of exact copy of a cell or any other living part or a complete organism. ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरा हमशक्ल आके खड़ा हो जाएगा कि मेरे को आप क्लोन कर देंगे तो वो मेरा जैसा दिखेगा, मेरे जैसा बात कर रहा होगा, मेरे जैसा हाथ हिला रहा होगा, ठीक है, मेरे जैसा पढ़ा रहा होगा, तो वो मेरा क्लोन है. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग. ठीक है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, बहुत ही हाई लेवल साइंटिफिक प्रोसेस है. इसमें पहली बार आयन विलमुट जो कि एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अपने कॉलीग्स के साथ, मतलब और भी साइंटिस्ट से साथ मिलके, ठीक है, रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडनबर्ग स्कॉटलैंड में पहला क्लोनिंग किया था. ठीक है, पहला ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्लोन करने को इन्होंने कोशिश किया था. दे क्लोन सक्सेसफुली ए sheep named Dolly. Okay, so if I also tell you how Dolly was formed, you won't understand. So just इसको एक कहानी की तरह सुन लो और आप कहानी की तरह याद भी कर लेंगे. ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं. क्लोनिंग का डेफिनेशन जानो, कहाँ क्लोनिंग पहली बार हुआ था, कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले क्लोन हुआ था और उसका नाम क्या है. 3 चीज क्लोनिंग के बारे में जानना है. क्लोनिंग का डेफिनेशन क्या है. द क्लोनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल और एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. 3 चीज क्लोन कर सकते हैं. एक सेल, एक ही सेल को क्लोन करना है कि एक पार्ट को, मेरा हाथ को सिर्फ क्लोन करना है. ठीक है, मेरा हाथ कट गया, मुझे और एक हाथ चाहिए तो हमको क्लोन करना है. ठीक है, क्लोन कर लिए, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म मेरे जैसा और एक चाहिए तो मेरे को पूरा क्लोन करना पड़ेगा. तो इट इज नोन एज क्लोनिंग. क्लोनिंग प्रोसेस एट एन एनिमल्स सक्सेसफुली कौन किया था, आयन विलमुट एट रोजलिन इंस्टीट्यूट इन ईडनबर्ग स्कॉटलैंड. ओके, द क्लोन सक्सेसफुली एक शिप. ठीक है, शिप को उन्होंने क्लोन किया था एंड इट इज नोन एज द शिप. का नेम क्या था, जैसे आप लोग का नाम है उसका भी नाम दिया गया था क्योंकि वो स्पेशल है, पहला क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म था, इसलिए उसको डॉली बोला गया. ठीक है, उसके लिए नहीं, उसका नाम ऐसे ही डॉली दे दी. ठीक है, ये जो कहानी है वो आप लोग बुक से पढ़ेंगे, मैंने बताऊंगा. ठीक है, एक कहानी की तरह याद रखना है इसको, इसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा. क्लोनिंग में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है क्लोनिंग के बाद पूरा सेम होता है. ठीक है, पूरा सेम. ट्विंस देखे हैं आप लोग, ट्विंस में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन क्लोन्स में भी डिफरेंस नहीं होगा, पूरा का पूरा सेम दिखेगा. ठीक है, क्लोनिंग में ये होता है. लेकिन क्लोनिंग अब नहीं, मतलब क्लोनिंग इज वेरी लिमिटेड. ओके, क्लोनिंग इज डन टू द लोअर ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमंस में क्लोनिंग नहीं होता बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस. सो क्लोनिंग सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, सिप, हैन, माउस, रैट्स एक्सेट्रा में होता है. थैंक यू एवरीवन, ये चैप्टर खत्म. आप लोग इस चैप्टर को फिर बार बार देखेंगे, जैसे मैं बताते आया हूं कि बार बार वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको चीजें याद रहेंगी. तो बार बार वीडियो देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.